Rebuild! 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 Afra! Afra! আমালোকৰ লিডাৰ্ছবিলাক তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা তেওঁলোকে ডেডিকেশ্যন ছেক্ৰিফাইচ যিটো আছে সেইটোৰ পৰাহে আজিৰ দিন আমালোকে চলি আহি আছোঁ আমালোকৰ সমাজ ভাল শান্তি আৰু আমালোকে প্ৰস্পেৰিটি সেইটো আমালোকে আগত বাঢ়ি গৈ আছোঁ সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ জনাই আছোঁ আৰু মোৰ মৰমৰ যিমানটো মা দেউতা আৰু বন্ধুসকল ভাই ভনীবিলাক যিমান আছে অল দ্য বিলিভাৰ্ছ সবকে ধন্যবাদ জনাই আছোঁ আপোনালোকে এইটো সময়টো দিয়া বা আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি দূৰ দূৰণিৰ পৰা সকলো মানুহ নিজৰ সময় দি কিনে আহি দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাই আছোঁ আজিৰ দিন আমালোকে এইটো ৰেলী প্ৰগ্ৰাম বা ধাৰণা প্ৰগ্ৰাম যিটো আমালোকে ৰাখিছোঁ সকলো মানুহে আমালোকে কোৱা নিচিনা অলপ হ'লেও আমালোকে শুনিছোঁ জানিছোঁ তো আফ্ৰা এক বোলে আমালোকে শুনি কিনে আহি আছে অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো লাগু কৰিবলৈ বিচাৰিছে তো আমালোকে এজ এ খ্ৰীষ্টিয়ান কমিউনিটি আণ্ডাৰ দ্য ACF অৰুণাচল খ্ৰীষ্টিয়ান ফৰাম আণ্ডাৰত আমালোকে সেইটো বিলটো বা এইটো এক্টটো আমালোকে প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ তো তাত কি আছে ক'লে আমালোকক ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজনটো আমালোকক লাগে তো সেইটো এক্টে সেইটো আফ্ৰা এক্টে আমালোকক এইটো ফ্ৰীডমটো ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আমালোকক সেইটো বাধা আছে বা আমালোকক ৰুকাবাত ডালাটো তেনেকুৱা আছে তো আমালোকে সেইটো এগেইনষ্টহে আমালোকে খাৰা কৰি আছোঁ আজি এজ এ খ্ৰীষ্টিয়ান কমিউনিটি আমালোকে সেইটো আমালোকে টোটেলি আমালোকে এইটো ৰিপিল সেইটো নেলাগে বুলি আমালোকে সেইটোহে আমালোকৰ প্ৰটেষ্ট বা আমালোকৰ ডিমাণ্ডটো গভৰ্ণমেণ্ট আগতে এইটো আছে এজ এ খ্ৰীষ্টিয়ান উই আৰ নট এগেইনষ্ট এনি ফেথ সেইটোও আমালোকে জনাই দিবলৈ মন আছে আজিৰ দিনৰ ৰেলী মকচদ যিটো আছে আমালোকৰ এইটো আছে যে আমি কাকো আমালোকে এগেইনষ্ট নকৰোঁ এনি ৰিলিজন এনি ফেথ সেইটো আমালোকৰ মকচদটো এইটো আছে আজিৰ দিনৰ ৰেলীৰ কথা যিটো আছে এণ্ড দেন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আমালোকে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন আহি থকা দিন ফিউচাৰ যিটো আছে সেইটো আমালোকে এনচিয়'ৰ কৰিবলৈ মন বা ইচ্ছা কৰিছোঁ যে আমালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনটো যেন ছেফ হওক ভাল থাকক কাৰো মানুহৰ দৰে প্ৰেছাৰ তেনেকুৱা নহওক সেইটো কাৰণে ফ্ৰীডমটো আমালোকে বিচাৰিছোঁ দুখ পাই পেলাইছোঁ আৰু মোৰ আত্মাই এইটো কৈ আছে আপোনাবিলাক বি দুখ কৰি পেলাইছে কোনোৱে ইয়াতে ফূৰ্তি কৰিবলৈ অহা নাই কোনোবাই একটা ফূৰ্তি হৈ পেলাই মই চাংলাং টাউন চাবলৈ আহিম বুলি অহা নাই আমি কান্দি পেলাই আহিছোঁ দুখ পাই পেলাই আহিছোঁ কি কাৰণে দুখ পাইছোঁ আৰু কান্দিছোঁ জানে আমাকে মাৰা মানুহ আমাকে কষ্ট দিয়া মানুহটো আমাৰ গাৰ্জেনবিলাকটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক আছে আমাৰ মুখীয়াসকলে আমাৰবিলাকৰ কি আনি চকু পানী চাবলৈ মন আছিলে এইটো কাৰণে এতিয়াৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে 47 ইয়াৰ্ছ আগতে পাছ হোৱা এটা এক্ট আৰু এইটো ঠাণ্ডা হৈ যোৱা ঠাণ্ডা অৱস্থাতে বান্ধি দিয়াটো কি দেখি পেলাই এইটো খুলি পেলাই এইটো পচাটো মানে আমাৰবিলাকক শুনিবলৈ দি পেলাই আজি কান্দিবলৈ দি আছে এইটো একটা বহুত দুখৰ কথা আমি আমাৰ গাৰ্জেনবিলাককে আমাৰবিলাকক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে তেওঁলোককে ইটানগৰতে চিফ মিনিষ্টাৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ আমাৰ MLAs এনেকুৱা কৰি পেলাই পঠাইছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ অলপ ভাৱনা চিন্তাতে ঢুকি পোৱা নাই হ'ব পাৰে বা পুঞ্জা নাই হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ এইটো একটা জবৰদস্তি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কথাটো অৰুণাচল প্ৰদেশ ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন এক্টটো এইটো বস্তাটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম বুলি খোলা কাৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চবেই কান্দি পেলাই আহিছোঁ দেই
উপভোক্তাসকলে এক দুটা কথাটো কৈ গৈছে, ইটো যদি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হয়, এতিয়া পাছ কিছুমান ষ্টেটছে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে, পাছবিলাকৰ জেল হয়, কলেজবিলাকক এইটো ৰাস্তা পদূলিতে মাৰামাৰি হয়, চাৰ্চবিলাক ভাঙা ভাঙি হয়। আমি দেখি আছোঁ, শুনি আছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়া আজি বহুত এক্টিভ আছে। এইটো ছেম বস্তু অৰুণাচলতে হ'ব দেই। এইটো কাৰণে আমি আমাৰ গাৰ্জেনবিলাককে আজি এইটো শুনাবলৈ বি আহিছোঁ, সিহঁতকে বি শুনাবলৈ আহিছোঁ। আমাৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰতে কান্দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ গাৰ্জেনবিলাক যিবিলাক প্ৰেক্টিকেলি গ্ৰাউণ্ড লেভেলতে কাম কৰা আছে, তেওঁলোকক আমি এইটো জনাবলৈ আহিছোঁ, শুনাবলৈ আহিছোঁ। আমি দুখ পাই আছোঁ দেই, আপুনি এইটো বস্তাটো বন্ধ কৰক, এইটো আফৰাটো ৰিপিল কৰক, খতম কৰি দিয়ক। Profess the freedom to practice, the freedom to propagate our own religion of our own choice. This act is draconian in nature. It creates an environment of fear and intimidation among our citizens. This act will hinder each one of us, the faithfuls, to share our faith. It will also create undue troubles to those who want to follow the path of Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters in Christ, remember the law that seeks to control our faith are the laws that control our hearts and mind. This Afra is not only controlling our faith, but is also controlling our hearts and our mind. Why will you want the law to control your heart and your mind? क्या आप चाहते हो कि ये कानून आपका हार्ट और माइंड को कंट्रोल करे? कानून किस लिए बनाता है? कानून सोसाइटी में ऑर्डर लाने के लिए बनाता है। कानून किसी का प्राइवेसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं बनाता है। कानून किसी का माइंडसेट को कंट्रोल करने के लिए नहीं, किसी का हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए नहीं। As a citizen, we have entrusted, we have mandated our representatives to guide us on the path of progress, civilization, and development. We have not mandated them, we have not entrusted them to regulate such rules that would infringe, that would control our hearts. हम लोग ये नहीं चाहते हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव से कि ऐसे रूल बनाओ जो हम लोग का जो डीपली हम लोग बिलीव करता है, जो हम लोग अपना विलिंग से चॉइस करता है, अपना सोल के लिए, अपना आत्मा के लिए, उसका अगेंस्ट में लॉ बनाने के लिए हम लोग ने एंट्रस्ट नहीं किया और मैंडेट नहीं किया। इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूं और यहां पे जितना भी फेथफुल्स आया है, यही मांग है, यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि जो आफरा 1978 में एनेक्ट किया था और इतना साल में डोमेंट रहा और टाइम पीरियड लेस भी हो गया, इसको आप रिवाइव करके हम लोग का ब्रदरहुड को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कराने से ठीक है और डिसहार्मनी नहीं लाने से ठीक है। हम लोग का जो ब्रदर्स है, जो रंगफ्रा डोनी पोलो फेथ को जो एडॉप्ट कर रहा है, जो विश्वास कर रहा है,
उन लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये आफरा और जो हम लोग क्रिश्चियनिटी यहाँ पे गेटअप हुआ है, हम लोग कल्चर और ट्रेडिशंस का अगेंस्ट नहीं है। हम लोग ये आफरा का अगेंस्ट है जो हम लोग का फेथ को कर्टल कर रहा है प्रोफेस करने में। सिर्फ आफरा का एक को हम लोग नहीं चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को वेलकम करता है अगर ऐसे कोई लॉ बनाओ जो कंप्लीटली सोलली पर्टिकुलरली हम लोग का कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करे और प्रोटेक्ट करे। हमारे अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियनिटी का बारे में झूठा आरोप जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहा है, उसके लिए मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। पहला एलिगेशन जो है, आरोप लगाते हैं, क्रिश्चियनिटी वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स as a foreign religion, as a part of the political capitalist propaganda. It is a political agenda. ये सिखाया जाता है कि अंग्रेजों ने क्रिश्चियन धर्म को लेके आया है अपने राजनीति करने के लिए, और हम इंडियंस को क्या करना है कि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट उन लोग का जैसे बनाने के लिए ब्रिटिश माने अंग्रेजों ने लेके आया बोल के सिखाया जाता है, बताया जाता है, और फेसबुक सोशल मीडिया में बहुत ऐसा अफवाह फैलाता है। लेकिन इसमें आप एग्जामिन करके देखिए, राइट। लोग सोचते हैं कि अरे अंग्रेजों हमसे लौटने आए हैं, हमको मारने आए हैं, उनका धर्म में क्यों लो, ये मेंटालिटी ऐसा सोच पैदा करते हैं। लेकिन आप इतिहास में जाइए कि आप इतिहास में जाने से ये पता चलेगा कि ब्रिटिश ने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया, गॉस्पेल्स एंड गन्स डू नॉट गो टुगेदर। बंदूक और गॉस्पेल एक साथ नहीं चलता। जब ब्रिटेन से, इंग्लैंड से विलियम कैरी इंडिया में आना चाहा ना, ये इंग्लिश कॉलोनी कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं किया, डेनिश कॉलोनी सेरमपुर में जाना पड़ा। वहां में उन्होंने इंडिगो का कारखाना खोला, प्रिंटिंग प्रेस बनाया, और एशिया में फर्स्ट कॉलेज 1818 में सेरमपुर कॉलेज किया, और आज वो सेरमपुर यूनिवर्सिटी था। और उस तरह हमारे ये नॉर्थ ईस्ट में रॉबर्ट वॉकिंसन आया था प्रचार करने के लिए मणिपुर मार ट्राइब में। ब्रिटिश असम में जो पता चला भगा दिया। आप लोग डॉक्यूमेंट्री देखिए, द नेक्स्ट माउंटेन। सो ब्रिटिश लोग यहाँ में गॉस्पेल देने नहीं आया है, कमाने के लिए आया। फर्स्ट में ईस्ट इंडियन कंपनी, आस्ते आस्ते वो लोग ने क्या किया, वो कंपनी ने बुलाया है अपने सिपाहियों को, और क्या क्या माने उसको ब्रिटिश राज इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन गॉस्पेल इंडिया में बहुत पुराना हुआ। आप लोग को बता दो कि इंडिया में गॉस्पेल ये साल 1973 इयर्स हो गया। कैसा? 52 एडी में, 52 एडी में ही सेंट थॉमस केरला में ट्रंकपोर में आया, और प्रचार करते करते मालापुर मद्रास आया, और वहीं में उनका डेथ हुआ 72 एडी। कोई मद्रास जाइए, तंबरम एयरपोर्ट के सामने सेंट थॉमस माउंट है, वहां में उनका यादगार के लिए सेंट थॉमस श्राइन बनाया है, सामने में सेंट थॉमस। मैं भी उसमें जाके खुद देख लिया, 72 में सेंट थॉमस। सो इंडिया गॉस्पेल मिला है 52 एडी में, ब्रिटिश राज इस्टेब्लिश हुआ 1858, मतलब 1806 साल के बाद में ही ब्रिटिश लोग आया है, जबकि इंडिया में 52 फर्स्ट सेंचुरी में ही गॉस्पेल मिला था। क्रिश्चियनिटी तो अगेंस्ट कल्चर के अगेंस्ट में बोल के बहुत लोग बोलते हैं, और मैं मानता हूं कि कल्चर में सबसे बड़ा जो है लैंग्वेज होता है, अपने कल्चर अपने लैंग्वेज। मैं बोलता हूं, आप चैलेंज कीजिए जहां में भी, क्रिश्चियनिटी इज द नंबर 1 रिलीजन दैट प्रमोट्स लिटरेचर। जितने जनजाति के बीच में बाइबल जो है पहला ट्रांसलेशन होता है, और मैं अपना एक्सपीरियंस से भी बताना चाहूंगा, मेरा ट्राइब में भी गॉस्पेल प्राइमर संडे स्कूल से हम लोग को लिखने पढ़ने, अपने भाषा पढ़ने को सिखा है, और हम लोग का बाइबल जो रहा माने फर्स्ट ट्रांसलेशन। और जी एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जितना भी
गैदर हुआ है सब क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, क्रिश्चियन फेथ का है। और हम लोग यहाँ पे इसलिए गैदर हुआ है कि अभी जो रिसेंटली जो अफरा जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 जो 1978 में एनेक्ट किया है, वो अभी 40 इयर्स होने के बाद फिर रिवाइव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्टेप ले रहा है। तो उसके अगेंस्ट में हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि वो कम्प्लीटली रिपील हो, क्योंकि वो लॉ जो है आप कॉम्प्रिहेंसिवली जब एनालाइज करता है उसका रूल्स वो ड्रेकोनियन है, क्योंकि वो एक ही सेक्शन को मैं बोलूँगा पर्टिकुलरली क्रिश्चियन को उन्होंने सप्रेस करने के लिए बनाया गया है लॉ। क्योंकि यहाँ पे जब आप एक को देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन को प्रोटेक्ट नहीं करके बाकी रिलीजन जैसे कि रंगफ्रा हो गया, डोनी पोलो हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, ये सबको सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इट बिकम्स लाइक ये लॉ जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। सेकेंडली हम लोग ये एक्ट को इसलिए मतलब अपील कर रहे रिपील करने के लिए क्योंकि इसमें जो रूल्स लगा हुआ है, जैसे कि हम लोग अगर क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करता है या कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग डीसी से इंफॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को में जाता है सेक्शन 20 आर्टिकल 20 क्लोज 3, जब हम लोग आर्टिकल 20 क्लोज 3 पढ़ता है वहाँ में हम लोग को एक राइट देता है कि जो अक्यूज है वो खुद को सेल्फ एविडेंस नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए कि हम लोग जब कन्वर्ट होता है तो फिर हम लोग ऐसे हो रहा है कि डीसी को हम लोग फिर इंफॉर्मेशन देना पड़ रहा है कि हम लोग कन्वर्ट हुआ है। तो मेरा हिसाब से जब कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोग को एक फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी भी जब दिया गया है तो ये कानून तो जरूर नहीं है, क्योंकि रिलीजन चॉइस करना मेरा प्राइवेसी है, मेरा प्राइवेट डिसीजन है और रिलीजन चॉइस करना वो सोलली मेरा है। तो हमको एक प्राइवेसी देना चाहिए गवर्नमेंट जो, और हमको फोर्स नहीं करना है कि मेरा प्राइवेसी को हम रिवील करें और डीसी को इन्फॉर्मेशन दे। तो एज ए होल अगर एंटायरली जो एक्ट को देखा जाए तो ये ड्रेकोनियन है और पार्टिकुलरली कुछ सेक्शन को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कुछ रिलीजन को वहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनली सप्रेस करने का चांसेस है और मिसयूज होने का चांसेस है। इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं इसको रिपील करना है बोल के। थैंक यू सो मच। तो सर हमारा दूसरा सवाल ये है कि जो बाकी धर्म का लोग है ये दावा कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है लोग लालच देके दूसरा रिलीजन को अपना रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको लेके आपका फोरम क्या कहना चाहेंगे? ये तो फॉल्स एलिगेशन है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कभी भी लोभ लालच नहीं दिखाता है, किसी को इंड्यूस नहीं करता है। हम लोग अपना रिलीजन को प्रोपोगेट करता है। वहाँ पे जो आदमी वो प्रोवोकेशन को देख के जो हम लोग रिलीजियस हम लोग का जो प्रिंसिपल है उसको सिखाता है, उसको सुन के अगर वो लोग कन्वर्ट होता है तो हम लोग कन्वर्ट करा देता है, बपटिस्मा दे देता है। इसमें कोई इंड्यूसमेंट का नहीं आता है। तो ये सेक्शन ये एक्ट जो है वहाँ पे जो इंड्यूसमेंट लिखा हुआ है वो भी एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग रिपील करने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट का वोट जो है कोई भी इसको मिसयूज कर सकता है और एज ए होल जितना भी चर्च लीडर है वो लोग को मतलब कंपेल कराता है स्क्रूटनाइज करने के लिए और रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन करने का चांसेस होता है। सर दूसरा है जैसे कि आप लोग जो है कल जो है इंडिजिनस फेथ लोग जो है रैली हुआ है, आज जो है क्रिश्चियनिटी लोग जो है रैली हुआ है, तो इस तरह से रैली होते रहेगा तो आगे जो है मुश्किल एक गरीबी आएगा। तो आप लोग क्यों ना साथ में बैठ के एक सॉल्यूशन लाए, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हम लोग का आज क्रिश्चियनिटी का कम्युनिटी का भी यही अपील है। देखिए हम लोग जो रैली किए आज सिर्फ हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को अपना वॉइस को पहुंचाना चाहता है। इसमें ऐसे नहीं है कि हम लोग रंगफ्रा ब्रदर्स लोग को या हम लोग का डोनी पोलो ब्रदर्स लोग को, बुद्धिज्म ब्रदर्स लोग को हम लोग अगेंस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सोलली हम लोग का डिमांड है कि रिलीजियस के अगेंस्ट में कोई भी रूल नहीं बनाना है, क्योंकि रिलीजन जो है अपना पर्सनल है और अगर ट्रेडिशनल और कल्चर हेरिटेज को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसको तो हम लोग आज से क्रिश्चियन हम लोग वेलकम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि ऐसे रूल बनाओ जो हम लोग का ट्रेडिशन और कल्चर को प्रोटेक्ट करे। हम लोग का रंगफ्रा, डोनी पोलो, बुद्धिज्म ब्रदर्स लोग का अगेंस्ट नहीं है।
असेंबली में जो है बजट सेशन में ये एक्ट के ऊपर में बहस नहीं किया जाएगा, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार को? एक्चुअली हम लोग सोचा है कि ये सेशन में वो लोग टेकअप करेगा, लेकिन क्लियर कट हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का ये भी है, डिपार्टमेंट को भी वो संभालता है, स्पोक पर्सन है, तो उन्होंने क्लियर कट बोला है कि ये चीज़ जो है हाउस में डिस्कस नहीं होगा। तो इसको लेके हम स्टेट गवर्नमेंट को यही अपील है हम लोग का आज से क्रिश्चियन कम्युनिटी की, ये चीज़ को एक्चुअली डिस्कस करना चाहिए और रिपील करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अगर रिवाइव करने का बात कर ही लिया तो इसको हम लोग का क्रिश्चियनिटी का वॉइस को सुन के जो हम लोग डिप्राइव हुआ है उसको जेन्युइनिटी को देख के उसको रिपील करने से ठीक था। इस बार का सेशन में वो लोग डिस्कस करने से ठीक था बोल के हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं।